Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Government Group of Schools. Students, in our earlier class, we have done the third chapter in the prose section of the book, The First Flight, and in that third chapter was regarding two stories about flying. As we all know that story, this chapter has two stories. The first one was his first flight that we have done already, and the second chapter is Black Aeroplane. Students, we are going to proceed with the next chapter of this chapter. Next part of the story, that is the Black Aeroplane. Students, the story is written by Frederick Forsyth. Uh, so, before starting the explanation of the chapter, let us try to know something about it. Uh, as we all know, that the lesson Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. Okay, so in this chapter, the narrator is pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का जो जजमेंट है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है फैंटेसाइज करने के कारण, और फिर उसमें वो फैंटेसाइजिंग जो है आपकी जजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस चैप्टर का जो नरेटर है वो एक पायलट है और जो कि अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है। वो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करता है और फिर उसके बाद स्टार्म होने के समय में भी वो अपना एरोप्लेन लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाई स्टार्म की स्थिति है, if it is the situation of storm, in that case राइट डिसीजन क्या होता है कि वो आगे ना बढ़ता और मौसम के ठीक होने का वेट करता, लेकिन उसने रॉन्ग डिसीजन लिया, उसने स्टॉर्म को फेस किया। Miraculously he somehow manages to escape with the help of a mysterious aeroplane, लेकिन फिर स्टॉर्म में आगे बढ़ता है और फिर एक मिस्टीरियस एरोप्लेन के सहारे वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। स्टोरी में क्या होता है, जो कुछ भी है, एक मिरेकलस स्टोरी आप इस चैप्टर को बोल सकते हैं। इस स्टोरी में मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. It was night when the sky was clear and the stars could be seen twinkling. रात का समय था जब इसने निकलने का फैसला लिया। स्काई क्लियर था और स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। There was not a cloud in the sky. There was no cloud at all. Okay. So I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. The pilot felt peace in being above a country that had fallen asleep while he was flying over. Flying in the sky, because he was alone high up above the sleeping countryside. जो गांव का क्षेत्र था वो पूरा सो रहा था और उसमें ये सबके ऊपर से उड़ रहा था, अकेले था उसमें। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. वो
जो है अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था फ्रांस के ऊपर से, और वो इंग्लैंड वापस आ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. ओके, सो ही वॉज ड्रीमिंग कि मैं उसकी जो हॉलीडे होने वाली है वो कितनी अच्छी होगी, और अपने परिवार के साथ how he is going to enjoy his holiday with his family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. When he looked at his watch, he found it was 1:30 in the morning. Okay, 1:30 सुबह 1:30 का समय था, और वो जो है फेंटिसाइज कर रहा था हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ. I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. Okay, when the aeroplane was in France, the pilot thought of informing the Paris control personnel about its presence and for instructions. So नैरेटर ने सोचा कि वो पहले पेरिस कंट्रोल जो है पर्सनल को अपने प्रेजेंस के बारे में इन्फॉर्म कर दे और उनसे इंस्ट्रक्शन ले ले. जब वो तभी किया जब वो एरोप्लेन वो जो फ्रांस में था. एट दैट टाइम लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई saw the lights of a big city in front of me. Okay, at that time lights were from the Paris city were blaring at him. कि वहाँ पे जो पेरिस सिटी की जो लाइट्स थी वो खूब तेज जल रही थी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड सो. नरेटर ने अपना रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. सो ही इन्फॉर्म्ड टू द कंट्रोल एजेंसी that it is Dakota DS 088 and he is going to England, he is in his way to England. So the voice from the radio answered me immediately, DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088, over. So from the control room he got the information कि वो जो है अपने एरोप्लेन को जो है 12 डिग्री वेस्ट में लेके फ्लाई कर सकता है. इन दिस वे ही गॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन. ओके, द कंट्रोल रूम एट पेरिस इंस्ट्रक्टेड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज टूवर्ड्स द वेस्ट. वहाँ पे जो वो थे उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि आप 12 डिग्री वेस्ट में फ्लाई करो. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. So the narrator checked the map and the compass after receiving the instructions. जैसे उसने इंस्ट्रक्शन लिया तुरंत उसने अपना कंपास चेक किया, अपना मैप चेक किया, और उसके बाद जो है switch over किया to his second and last fuel tank. The pilot geared up and followed them while putting the last fuel tank into operation. And turned the Dakota 12 degrees west towards England. और जो है निकल पड़ा 12 डिग्री वेस्ट में इंस्ट्रक्शन के मुताबिक. Okay, I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So all this time he was dreaming about this time with his family. जब वो चल रहा था तो पूरे टाइम अपने परिवार के साथ उसका टाइम कैसे बीतेगा वो उसी के बारे में ड्रीम कर रहा था, सोच रहा था. He started thinking about having a satisfactory breakfast
एट द डेस्टिनेशन। जब वो पहुंच जाएगा अपने घर तो वो अच्छा खासा एक रिस्पेक्टरी ब्रेकफास्ट वो मिलेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ओके, he was calm and everything was going as planned, and it was an easy flight, एक आसान सी फ्लाइट थी वो। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds। वो पेरिस से निकला और अभी 150 किलोमीटर की फ्लाइट ले चुका था। ओके, पेरिस से 150 किलोमीटर आगे बढ़ा था। एंड देन he saw clouds। Now the plane had crossed Paris when he started seeing clouds in the sky. Storm clouds, they were huge. Okay, he started seeing clouds in the sky. The presence of clouds made it unsafe travel by air because there were chances of storm। जब कभी भी क्लाउड्स होते हैं तो एयर में ट्रेवल करना एयर ट्रेवल के लिए थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे फिर स्टॉर्म आने के चांसेस होते हैं। और द क्लाउड्स वर ह्यूज क्लाउड्स ओवर देयर। जो क्लाउड्स थे वो बहुत ही ह्यूज थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। दे वर सो ह्यूज एंड डार्क दैट द पायलट कंपेयर्ड देम टू ब्लैक माउंटेन्स। वो इतने बड़े थे और इतने डार्क थे कि पायलट ने उन्हें कंपेयर किया ब्लैक माउंटेन से। He knew he could not pass them as it was impossible to go above them or escape them with the amount of fuel that he was left with in the last time. Okay, so I knew I could not fly up over them। वो जानता था कि वो उनके ऊपर से क्लाउड्स के ऊपर जाकर के फ्लाई नहीं कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। और उनको अवॉइड करके उनके अराउंड जाने की भी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग सफिशिएंट फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। ऐसा नहीं था भाई, वो तो वेस्ट में जा रहा था 12 डिग्री वेस्ट में। अब वो नॉर्थ में टर्न करके ताकि क्लाउड्स जहाँ ना हो उधर से उड़े, तो उसके लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती। एंड फॉर दैट ही वॉज इन द नीड ऑफ हैविंग मोर फ्यूल। जबकि आपने पहले ही देखा कि वो अपने लास्ट फ्यूल टैंक पे चल रहा था, उसके पास सफिशिएंट फ्यूल नहीं था। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। एक बार तो उसको लगा कि जो है वो वापस जो है निकल जाए, वापस हो जाए पेरिस के लिए। द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू फ्लाई बैक टू पेरिस सेफली। ये तो एक राइट डिसीजन था कि वो वापस पेरिस फ्लाई बैक कर ले। ओके, बट आई वांटेड टू गेट होम। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। बट जो पोएट था, जो नरेटर था, उसको he was in homesickness। he was desperate to have his family and take that breakfast, but the pilot decision making was clouded by his wish to meet his family। He so desperately wanted to be with his family and have that English breakfast that had been dreaming of all the day that he took the risk। I'll take the risk। उसने रिस्क लिया। I thought and flew that old Dakota straight into the storm। उसने रिस्क लिया। और रिस्क क्या लिया? रिस्क ये लिया कि वो वापस नहीं गया पेरिस, और ना ही तो क्लाउड के से बच के किसी और से निकलने का उसके पास फ्यूल था। तो उसने सीधे क्लाउड में डाल दिया अपने डकोटा एरोप्लेन को। okay? Thus he headed the plane right into the storm। सीधे स्टॉर्म में उसने अपने प्लेन को हिट कर दिया। Inside the clouds everything was suddenly black। Okay, and now he was in the cloud। क्लाउड के अंदर पहुंच गया। And it was so dark because of the storm that nothing was visible outside the plane। इतना ज़्यादा था कि
inside the all right, inside the clouds everything was suddenly black. It was impossible to say anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखना इम्पॉसिबल था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. इसका जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था वो जो है एयर में जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था. आई लुक एट द कंपास, सो ही began to search for the compass. उसने कंपास खोजना शुरू किया. I could not believe my eyes. What happened? The compass was turning round and round and round. The compass and other instruments, I mean, जो कंपास था वो भी सही काम नहीं कर रहा था, वो केवल राउंड राउंड घूम रहा था. कंपास, you know very well that what is compass. Compass is an instrument that is used to get information regarding direction. डायरेक्शन पाने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एरोप्लेन, आई मीन पायलट्स आर जो है शिप के जो कैप्टन्स होता है, दैट इज कंपास. तो कंपास सही से काम नहीं कर रहा था. कंपास हैज फेल्ड टू वर्क. इट वाज डेड. The compass that he was having, that was dead. So I would not. Compass and other instruments had also stopped working because of the bad weather. Bad weather के कारण वो काम करना बंद कर दिए थे. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. So उसने जो है रेडियो पे दोबारा कांटेक्ट किया. Paris control, can you hear me? There was no answer. Then he tried to have a connection with the Paris control. He tried calling the Paris control agency who had helped him earlier, but could not connect because of the weather. अभी वो पेरिस कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था. Okay, and I could not see where I was. Now the narrator was unable to see where he was due to bad weather. In the midst of nowhere, when everything failed, he saw a ray of hope. Then what happened? I was lost in the storm. जो narrator है वो पूरी तरीके से storm में खो चुका था. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. Now, it was the miracle. He saw a ray of hope when he saw another aeroplane. वहां पर उसको ठीक उसके सामने एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई पड़ा. उसकी विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी. There was no light on its wings. लेकिन फिर भी वो उसको ठीक से दिखाई पड़ रहा था, वो उसको ठीक से देख पा रहा था. But I could see it flying. ठीक उसके सामने, वो उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था. I could see the pilot's face. यहाँ तक कि जो पायलट का फेस था वो भी उसको दिखाई पड़ रहा था. Okay, I could see the pilot's face turned around towards me, जो कि उसकी तरफ मुड़ रहा था बीच बीच में. I was very glad to see another person. वहाँ पर किसी और को देख करके उसको बड़ी खुशी मिली. He lifted one hand and waved. उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और वेव किया कि फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो उसको बोल रहा था नेटर को कि उसको फॉलो करे. सो यू कैन फाइंड आउट ओवर हियर. ही फेल्ट रिलीव्ड व्हेन ही सॉ अनदर पायलट्स फेस. जब उसने किसी दूसरे पायलट का फेस उसने देखा तो काफ़ी रिलीव फील हुआ. ओके, एंड विलिंगनेस टू हेल्प हिम. और ये भी देखा कि ये जो अनदर पायलट था वो उसकी हेल्प करना चाहता था. ओके, तो एंड विलिंगनेस टू हेल्प हिम एस्केप, की वो जो है इस स्टॉर्म को एस्केप करे. ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट द अदर पायलट इज़ वेरी काइंड. वो जो है अपने आप में सोचा कि ये पायलट जो है काफ़ी काइंड है. ओके, एज ही न्यू दैट दे वर लॉस्ट एंड ही वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम. ओके, सो उसने कहा कि फॉलो मी. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. वो समझ गया, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ वहाँ पे.
ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. वो जो है ही वॉज आई मीन द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द अर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. उसने क्या किया, उसने मेरे एरोप्लेन आई मीन उस जो अनदर प्लेन का जो है पायलट था, उसने जो है अपने एरोप्लेन को मेरे डकोटा के ठीक सामने डाल दिया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसको फॉलो करूं. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. एंड यहाँ पे यू कैन फाइंड आउट दैट दिस आई मीन द पायलट वॉज वेरी हैप्पी टू फॉलो हिम जस्ट लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसको फॉलो करने में वो कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा था. ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी to go behind. Okay. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक दोनों both of them remain flying. Okay. दोनों जो है लोग साथ साथ उड़ते रहे, और अभी आधे घंटे बाद भी वो आई मीन जो दूसरा वाला एरोप्लेन था वो नेटर के ठीक सामने था. नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more. द मेन प्रॉब्लम वाज द फ्यूल. अभी जो है इस समय पायलट के जो है टैंक में सिर्फ इतना फ्यूल था कि उसका ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन है वो 5 या 10 मिनट तक और उड़ सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. और अभी वो जो है, और ही वॉज ऑल्सो पैनिकिंग बिकॉज देयर वर वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट. अभी उसके पास बहुत कम फ्यूल बचा हुआ था, तो फिर से एक बार पैनिक हो रहा था वो. एंड देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म. तब उसने देखा कि जो अनदर प्लेन का जो है वो है पायलट है, वो अपने एरोप्लेन को नीचे की ओर ले जा रहा है. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me. Suddenly he felt कि he was out of clouds. उसने महसूस किया कि वो क्लाउड्स के बाहर आ गया, और उसने 2 लाइन्स ऑफ लाइट्स को उसने अपने आप देखा. कहाँ पहुँच गया वो? वेयर ही वॉज नाउ? इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट. He found it was only then he started coming out of the storm and could see the runway land his plane safely. वो अभी रनवे पे आ गया था, वो एयरपोर्ट पे था, सेफ था वो. I turned to look for my friend in the black aeroplane. और अभी एक बार फिर से जो पायलट है वो मुड़ के देखने का प्रयास किया अपने उस अजनबी फ्रेंड की ओर, जिसने कि इसको राइट वे में राइट तरीके से यहाँ तक पहुँचाया. देन द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी. वहाँ पे जो एम्प्टी स्काई था वो एम्प्टी था. देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था वहाँ पे. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था वहाँ से. I could not see it anywhere. ऑथर को आई मीन जो है इस पायलट को, नरेटर को, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. So he landed. I mean the narrator, the author, did not know where he had landed, but he was not afraid of leaving his plane unattended. वो उसको नहीं आइडिया था कि वो कहाँ लैंड किया है, बस उसने लैंड कर लिया था. ओके,
लेकिन अभी वो अपने एरोप्लेन से निकलने में तनी भी डरा हुआ नहीं था। वो सीधे कहाँ गया? कंट्रोल रूम की तरफ गया उस दूसरे पायलट के बारे में पूछने के लिए। I went and asked a woman in the control center where I was. Narrator went to the control center, and in the control center to the woman who was over there as for the information, and he asked where he was and who the other pilot was. वो पूछने के लिए गया वहाँ पे कि वो कहाँ है और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। वो उसको ये नरेटर जो था वो उस अनदर पायलट को थैंक्स बोलना चाहता था। She looked at me very strangely and then laughed. उसकी समझ में नहीं आया, उस वुमन की समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। To his utmost surprise, the lady informed him because very strangely, she just laughed. Another aeroplane? Up there in this stern. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Now, this was really very surprising. The lady informed him that there was no other plane in the sky except his because of the bad weather. उसने बताया कि बैड वेदर के कारण आपके एरोप्लेन के कारण कोई और एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था, केवल आपका अकेला एरोप्लेन था जो वहाँ पर फ्लाई कर रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? Now this narrator was highly astonished with a lot of questions that remained unanswered in his mind. उसके माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन unanswered रह गए। कौन था? Who helped me to arrive there safely? किसने हेल्प किया इसकी वहाँ सेफली पहुँचने के लिए, जबकि उसके पास कंपास नहीं था, रेडियो वर्क नहीं कर रहा था और उसके एरोप्लेन में बहुत कम फ्यूल बचा हुआ था। Who was the pilot on this strange black aeroplane? वो जो स्ट्रैंज ब्लैक एरोप्लेन पे पायलट था वो कौन था? वो फ्लाइंग इन दिस स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि वहाँ पे स्टॉर्म में बिना लाइट के फ्लाई कर रहा था। ये सारे क्वेश्चंस थे दैट रिमेन अनआंसर्ड, वो अनआंसर्ड रह गए थे। दिस इज द मिरेकल, इसे कहते हैं मिरेकल। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. You are supposed to complete your work as per the assignment. Thank you. Have a nice day.